علماء کرام، سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے اس مبارک رات میں ہم سب کو جمع فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ معزز سامعین کرام، ہم جس مبارک رات میں یہاں جمع ہیں، یہاں ہم ایک مقدس جگہ پر تشریف رکھتے ہیں۔ ہم کافی دیر سے اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں دین کی بات سننے کو ملے گی، ہمیں آج کچھ حاصل ہوگا۔ تو جس چیز کے لیے ہم بیٹھے ہیں، جس دین کی سمجھ، جس دین کی طلب اور محبت میں ہم یہاں تشریف رکھتے ہیں، تو آپ کو اسی احترام اور وقار کے ساتھ اب بیٹھنا ہوگا۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اب آگے کی طرف آ جائیں۔ مختصر بات ہوگی لیکن بہت اچھی ہوگی۔ دینوں دنیا کی تمام چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ جو دیوار سے لگا کر بیٹھے ہیں، اگر کوئی بیماری ہے تو معذرت، لیکن دیوار کی 3 خصوصیتیں ہیں۔ دیوار کی 3 خصوصیتیں ہیں۔ دیوار اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے اور گونگی بھی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے اور نہ کسی کو سمجھ سکتی ہے۔ تو یہ جب ٹیک لگتی ہے تو آدمی کو اونگ آٹومیٹک آ جاتی ہے۔ تو اس کی قباحت سے بچتے ہوئے، شیطان کے فروڈ سے بچ کر آپ کو اس مجلس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے، مسجد کا خیال رکھتے ہوئے بیٹھنا۔ جس مبارک رات میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس مبارک رات کا مختصر تذکرہ، پھر میں قرآن کریم کے اوپر کچھ بول کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ بچوں، بہت دیر تم نے تقریر کری، کسی نے مکالمہ کیا، کسی نے نظم پڑھا، کسی کو دیکھا آپ نے کہ وہ بول رہا ہے؟ ہاں بھائی چھوٹو، جب تم نظم پڑھ رہے تھے کسی کو دیکھا کہ کوئی بول رہا ہے آپ کی نظم میں؟ جب سب لوگوں نے تمہاری نظم چپ چاپ اور تمہارے مکالمے چپ بیٹھ کر سنے ہیں، تو آپ کیا نمبر آتا ہے کہ آپ بھی اب چپ بیٹھ کر سنیں۔ ٹھیک ہے، خاموشی کے ساتھ سنیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات، جس رات میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس امی عائشہ آئیں اور امی عائشہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آج کون سی رات ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے فضائل اور خصوصیات کیا ہیں؟ امی عائشہ نے فرمایا، اللہ کے رسول مجھے اس کا علم نہیں، آپ بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بڑی بابرکت اور فضیلت والی رات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں بخشش طلب کرنے والوں کو، بخشش چاہنے والوں کو بخش دیتے ہیں، اور رحم مانگنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ اس روایت میں بڑھ کر الفاظ یہ ہیں کہ آسمان پر اللہ تبارک تعالیٰ آ جاتے ہیں اور آسمان دنیا پر آ کر دیکھتے ہیں کہ میرا کون سا بندہ عبادت کے اندر مشغول ہے، کون سا بندہ مجھے چاہ رہا ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں، تو میں بخشنے کے لیے تیار ہوں، میں رحم کرنے کے لیے تیار ہوں، میں معافی کے لیے تیار ہوں۔ ایک روایت ہے حضرت جبریل امین کی۔ جبریل امین اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اس رات کی فضیلت کے بارے میں علم ہے، آپ جانتے ہیں اس کی کیا خصوصیات ہے؟ جبریل امین نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو بتایا کہ یہ جو رات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی رات میں قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس مبارک رات میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں مبارک سے، اس بابرکت سے، یہی بابرکت اور مبارک رات مراد ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر تمام دنیا کے نظام کو، جو اللہ کے علم میں محفوظ ہے، لوح محفوظ میں جو تمام لکھا ہوا ہے، اس نظام کو 1 سال کے کو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتے ہیں
کہ 1 साल का निजाम मैंने तुम्हें दे दिया, किसको रोजी मिलनी है, किसको मौत आनी है, कौन जिंदा कितने दिन तक रहेगा, किसके पैसे में इजाफा होगा, कौन गरीब कर दिया जाएगा, किसकी हुकूमत बनेगी, किसको ताख्त व ताराज कर दिया जाएगा, कौन इबादत में बढ़ जाएगा, किसके यहाँ बच्चा पैदा होगा, किसको अल्लाह तबारक ताला मौत अता करेगा। तमाम पूरी दुनिया का निजाम अल्लाह तबारक ताला आसमान दुनिया के फरिश्तों को दे देते हैं कि जाओ इस निजाम को लेकर, जिसका नंबर आता रहे, जिसकी बारी आती रहे, तुम उसको नवाजते रहना। अगर पकड़ का मामला हो तो उसकी गिरफ्त करना। कितना आसमान से गल्ला बरसेगा, कितनी आसमान से बारिश होगी, कहां बारिश होगी, कहां बारिश नहीं होगी, कहां अल्लाह तबारक ताला का अजाब आएगा, किन लोगों पर किन लोगों का इम्तिहान लिया जाएगा, कहां बर्फबारी होगी, किस मौसम के अंदर अल्लाह तबारक ताला को बारिश करनी है, किस मौसम के अंदर अल्लाह को बर्फ बरसाना है, ये सारे का सारा सिस्टम और निजाम इसी रात में अल्लाह तबारक ताला फरिश्तों को दे देते हैं। पूरा कुरान करीम आपने 1000 मर्तबा सुना होगा। अल्लाह तबारक ताला ने इस कुरान करीम को नाजिल करने में 23 साल लगाए। थोड़ा 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 अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये नाजिल होता था, लेकिन इसी रात में अल्लाह तबारक ताला ने आसमान दुनिया पर पूरा नाजिल फरमा दिया था। आसमान दुनिया से जिब्रील अमीन जैसी जरूरत होती, जैसा मौका होता, जैसा वक्त होता, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिब्रील अमीन उसी तरह के अहकाम लेकर आया करते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सी रिवायात आपने सुनी होंगी, जैसे फजर का वक्त और शाम के असर का वक्त, ये इबादत का वक्त है और ये फरिश्तों की ड्यूटी के तब्दील होने का वक्त है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे कि मैं चाहता हूं कि जब मेरे अमाल अल्लाह के हुजूर पेश हो रहे हों तो मैं इबादत के अंदर मशगूल हूं, मैं तस्बीह फातिमी पढ़ रहा हूं, इसी तरह फजर के अंदर भी और इसी तरह असर के अंदर भी। इसी तरह ये बाबरकत रात का मामला है। इस बाबरकत रात में तमाम उम्मत के अल्लाह के यहाँ अमाल पेश किए जाते हैं। तो हमारी दिली ख्वाहिश भी यही है, हमारी तमन्ना भी यही है, हर एक नौजवान की, हर एक बुजुर्ग की तमन्ना यह है कि इस रात में जब हमारे अमाल अल्लाह के हुजूर फरिश्ते पेश कर रहे हों, हमारे रजिस्टर अल्लाह के सामने खुले हुए हों, तो अल्लाह तबारक ताला हमें इस हाल में पाए कि हम कहीं मस्जिद में बैठकर नफिल पढ़ रहे हों, हम किसी मस्जिद में बैठकर कुरान करीम पढ़ रहे हों, हम किसी मस्जिद में बैठकर किसी आलिम का बयान सुन रहे हों, हम कहीं बैठकर दीन की बात कर रहे हों। हमारी ये दिली ख्वाहिश है, इस वजह से ये मजलिसें सजाई जाती हैं, ये लोगों को तहज़हमत दी जाती है, ये मसाजिद को जिंदा किया जाता है। अल्लाह तबारक ताला ने ये निजाम बनाया है, ये निजाम चलता रहेगा। दुनिया आएगी जाएगी, हुकूमतें बदलेंगी, लेकिन अल्लाह ने जो निजाम रख दिया है वो चलता रहेगा। ये फजाइल, ये खुसूसियात इस उम्मत के साथ है, इस उम्मत के साथ रहेंगी। आपकी खुसूसियात अल्लाह ने आपको दी है तो आपके साथ रहेंगी। अल्लाह ने जो निजाम बनाया है दुनिया का, आपकी वजह से बनाया है। दुनिया में काफिर कितनी ही हुकूमत करते रहे, कितनी दुनिया पर चौधराहट हो जाए, लेकिन अल्लाह ने जो निजाम रखा है वो उम्मत मुहम्मदिया की वजह से रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पगड़ी के सदके में रखा है। अगर काफिर को रिज्क मिलता है, हुकूमतें मिलती हैं, तो आपके सदके में मिलती हैं, वरना अल्लाह तबारक ताला की ये सुन्नत नहीं, अल्लाह का ये निजाम नहीं कि अल्लाह काफिरों से हुकूमत कराए, गैरों से हुकूमत कराए, यहां तक के जालिमों से हुकूमत कराए। अल्लाह ने काफिरों को और बदकारों को और जालिम और जाबिर लोगों को हुकूमतें दी हैं, लेकिन अल्लाह जालिम की हुकूमत ज्यादा वक्त तक चलने नहीं देता। सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह को जालिम न कुफ्र की शक्ल में पसंद है, न इस्लाम की शक्ल में पसंद है। तो अल्लाह तबारक ताला ने आपकी वजह से सारे निजाम को रखा हुआ है, और हम अपने इस निजाम को बेहतर बनाने के लिए, अपने कल को बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को ताबनाक बनाने के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए इस रात का इंतजार करते हैं, इस रात में इबादत करते हैं, इस रात में अपने लिए नेकियां बटोरते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पहाड़ पर टहल रहे थे। आपने देखा
کہ ایک پہاڑ ہے اور وہ بہت نور سے چمک رہا ہے، اس کے اوپر بڑی روشنی ہو رہی ہے، گویا کہ اس طرح وہ معلوم ہوتا ہے جیسے یہ نور کا گنبد ہو۔ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، کہا اے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا چیز ہے، اتنا نور اس پہاڑ کے اوپر برس رہا ہے، گویا کہ یہ سراپا نور لگتا ہے، آپ مجھے اس معاملے کو سمجھا دیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ میں اس پہاڑ کا راز، اس نور جیسے منبر کا راز آپ پر کھول دوں؟ جی ہاں میرے پروردگار، میرے پیارے اللہ، مجھ پر یہ راز کھول دیجئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اس کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ فرشتوں نے ان کے دروازوں کو کھولا، اس پہاڑ کے جب دروازہ کھلا تو وہاں دیکھا انہوں نے کہ اندر ایک عابد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نورانی چہرہ، ایک ولی صفت شخص بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ولی صفت بیٹھا ہوا ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہے، پاس سے ایک پانی کا چشمہ بہ رہا ہے اور پاس میں ایک انگور کی بیل اگی ہوئی ہے۔ تو ان کی ملاقات ہوئی، کلام کے بعد، دعا کے بعد، سلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ اس پہاڑ میں کتنے زمانے سے عبادت کر رہے ہیں؟ ان بزرگ نے کہا کہ میں 400 سال سے اس پہاڑ کے اندر عبادت کر رہا ہوں اور میرے عبادت کے نور کی وجہ سے یہ پہاڑ سراپا نور بن گیا ہے۔ گویا کہ یہ نور کا منبر معلوم ہوتا ہے، یہ پہاڑ ہی تھا، میں اس کی غار میں آ کر بیٹھا، جب میں عبادت کرنے لگا تو میری عبادت کی وجہ سے یہ پہاڑ نور بن گیا۔ اللہ نے ایک پتھر کی چٹان کو اپنے بزرگ بندے کی وجہ سے، ایک اللہ والے کی وجہ سے نور بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کا گزارا کیسے چلتا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو پاس سے پانی بہ رہا ہے، میں اس پانی کو پیتا ہوں اور یہ انگور کی جو بیل اگ رہی ہے اس کو میں کھاتا ہوں، اور 400 سال سے میرا یہی کام ہے، میں اسی پہاڑ کے اندر رہ کر عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنا مبارک بندہ ہے، اللہ کیسا مبارک آپ کا یہ پیارا بندہ ہے جو 400 سال سے اس طرح عبادت کر رہا ہے کہ اپنے آس پاس کی چیزوں کو بھی پر نور کر دیا ہے اور رونق والا بنا دیا ہے۔ اللہ کیسے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس طرح سے عبادت کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب، اے روح اللہ، اے میرے نبی، میں کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ اس بزرگ سے بھی زیادہ عبادت کرنے والا کون ہے، اس بزرگ کے ثواب سے بھی زیادہ بڑھ جانے والا کون بندہ ہے؟ اللہ بتائیے کون ہے وہ جو اس بزرگ کے ثواب سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا؟ ایسا تو ہم نے نہیں دیکھا کہ اس قدر اس کی عبادت کا نور اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ کیا ایسے بھی لوگ دنیا میں آئیں گے جو ان سے بھی زیادہ عبادت کریں گے، اس کی عبادت سے بھی زیادہ ان کا ثواب بڑھ جائے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہاں، جو آخری نبی، آپ کے بعد آنے والے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد، کوئی نمازی نہیں، کوئی تہجد گزار نہیں، کوئی بہت بڑا اللہ والا نہیں، کوئی فقیہ اور مسجد کا بڑا امام نہیں، کوئی بڑے مدرسے کا شیخ الحدیث نہیں، صرف ایک عام آدمی، ایک عام سا بندہ اس رات میں، یعنی شعبان کی 15ویں رات میں، 15ویں تاریخ میں، اس رات میں عبادت کرے گا شعبان کی میں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ثواب اس بزرگ کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! یہ آپ کے فضائل ہیں، یہ آپ کی خصوصیات ہیں، آپ کو معلوم نہیں، آپ سن کر انسنا کرتے ہیں، آپ دیکھ کر ایسا کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں، آپ مسجد میں رات دن بیان سن کر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ جمعے میں آئے ہی نہیں، امام صاحب نے کوئی خطبہ ہی نہیں دیا، امام صاحب نے بتایا ہی نہیں کہ آپ کو زندگی کس طرح کی گزارنی ہے۔ حضرات، اس طرح کے حالات میں آج مسلمان جکڑا ہوا ہے کہ اب سے پہلے شاید کہ 500 سال کی تاریخ میں اس سے بدتر حالات کبھی مسلمانوں پر آئے ہوں۔ بزرگوں کی چیخیں رات کو تہجد میں نکل رہی ہیں۔ اللہ، یہ قوم، یہ امت، یہ آپ کے حبیب کی امت
उम्मत किस आलम के अंदर गुजर रही है। हिंदुस्तान हो या फिलिस्तीन हो, हर जगह जुल्म की चक्की के अंदर मुसलमान को पीस दिया गया है। अल्लाह ये हो क्या रहा है? अल्लाह ऐसी मुबारक रातों में भी हमारी इबादतें कबूल नहीं हो रही, आखिर हो क्या गया है? हमें मुसलमानों हमें फिक्र की जरूरत है, हमें अपने मकाम को पहचानने की जरूरत है। एक बच्चा अपने मकाम को नहीं पहचानता, अपने वजूद को नहीं पहचानता तो वो बाहर भी घूमता है, मस्जिद में बात भी करता है, नमाज में भी शोर करने लगता है। लेकिन एक नौजवान जो मस्जिद के अदब को जानता है, जो नमाज के फजाइल को जानता है, जो नमाज के तरीके को जानता है कि बोलने से नमाज टूट जाती है, तो वो कभी नमाज के खिलाफ अमल नहीं करता, वो कभी मस्जिद के अदब के खिलाफ बात नहीं करता, इसलिए कि वो जानता है। मुसलमानों, जब आप अपने फजाइल जानते हो, जब आप अपनी खुसूसियात जानते हो, तो फिर आप बच्चे क्यों बन रहे हो? आप अनजान क्यों बन रहे हो? आप मासूम क्यों बन रहे हो? जब आपकी खुसूसियात ऐसी हैं कि अगर आसमान की तरफ हाथ उठे, आसमान की तरफ मुंह उठे, तो अल्लाह तबारक तआला आसमान से रहमतों की बारिश कर दे, आसमान से अल्लाह तबारक तआला रहमतों के दरिया बहा दे। आपकी इस तरह की जब खुसूसियात हैं, तो मुसलमानों हमें अपनी हकीकत को पहचानना होगा, हमें अपने आप को जानना होगा। हम बदल गए, दुनिया बदली है, दुनिया के बदलने की वजह से हम नहीं बदले। हम जब बदल जाएंगे तो दुनिया का निजाम भी बदल जाएगा। हमें अपने आप को बदलना होगा। अल्लाह तबारक तआला इस रात में जहां सबकी मगफिरत फरमा रहा है, जहां रहमत के दरिया लुटा रहा है और रहमत के दरिया बहा रहा है, एक रिवायत के अंदर आता है कि कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बाल की बराबर अल्लाह तबारक तआला इस रात में लोगों की बख्शिश फरमाता है। कबीले बनु कल्ब, आज तो बकरियां देखने को नहीं मिलती, ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से भी पहले का जमाना है। जब आज का जो मुल्क शाम है, मुल्क शाम का जो मैदान आप देखेंगे कि जो वहां की राजधानी, उसके आसपास बड़े बड़े पहाड़ हैं और बहुत बड़े बड़े मैदान हैं, तो उन पहाड़ों के बीच में जो बड़ा मैदान था, इस कबीले की बकरियां उस मैदान में रहा करती थी। और लंबा चौड़ा मैदान था, जिस जमीन पर आज जंगो जिदाल और क़िताल और जिहाद हो रहा है। सारी दुनिया जिन लोगों को आज नेस्त नाबूद और बर्बाद कर देना चाहती है और दुनिया के तख्ते से मिटा देना चाहती है, और वहां के जो जमीन के अंदर अल्लाह ने खजाने रखे हैं, जो दौलत रखी है, अल्लाह के जो खजाने उस जमीन में हैं, उनको वो लूटना चाहते हैं। वो खजाने उसी जमीन में दबे हुए हैं जहां इस कबीले की बकरियां रहा करती थी। तो इतनी बकरियां थी कि उस पूरी वादी को वो बकरियां भर दिया करती थी। तो अल्लाह तबारक तआला इस रात के अंदर इस तरह लोगों की मगफिरत फरमाता है। एक बकरी पर कई करोड़ बाल होते हैं, और जहां करोड़ों की शक्ल में बकरियां हो और फिर उनके बाल, तो अल्लाह तबारक तआला किस कदर रहमत के दरिया बहा रहा है। लेकिन अल्लाह तबारक तआला जहां बख्शिश फरमा रहा है, वहीं अल्लाह को गुस्सा भी है कि ये मेरी इतनी रहमत के बावजूद, मेरे बख्शिश के ऐलान के बावजूद क्यों शराब से नहीं बाज आ रहे, क्यों वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हैं, क्यों ये एक दूसरे से अपनी बात को बिगाड़े हुए हैं। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में है कि आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला शिर्क करने वाले की मगफिरत नहीं फरमाता, अल्लाह तबारक तआला कता ताल्लुक करने वाले की मगफिरत नहीं फरमाता, अल्लाह तबारक तआला अपने टखनों को ढकने वाला और अपने पाजामे को जमीन से घिसकने वाले की मगफिरत नहीं फरमाता, अल्लाह तबारक तआला शराब पीने वाले की मगफिरत नहीं फरमाता, अल्लाह तबारक तआला इस रात में दिल में बुग़्ज़ और कीना रखने वाले की मगफिरत नहीं फरमाता। अभी आपने देखा कि अल्लाह ने कैसे मगफिरत के, बख्शिश के बहाने तलाश कर उम्मत को बख्शने का सामान तैयार कर रखा है। और वही अल्लाह तबारक तआला ने ये निजाम भी बनाया है कि अगर ये हुदूद है, ये कायदे कानून है, ये तरीका है, नमाज पढ़नी है तो वजू करना होगा, ये नमाज शर्त है, इसी तरह बख्शिश के लिए भी शर्त है कि तुम्हें इन सब चीजों से बचना होगा, शराब से, जुए से। मुसलमानों, आज हमें क्या हो गया है? हम गैरों की रविश पर, गैरों के तरीकों पर, शराब नोशी आज हमारे जवानों में कितनी बढ़ती जा रही है। हर बच्चे को, हर बाप को, हर नस्ल को, हर आने वाले बच्चे को इसके फसाद का पता है कि मैं अपनी सेहत भी बर्बाद कर रहा हूं और घर वालों को भी बर्बाद कर रहा हूं।
अपना पैसा भी बर्बाद कर रहा हूं और अपनी सेहत भी बिगाड़ रहा हूं, उसके बावजूद कितनी तेजी से नशा फैल रहा है। शराब ही नहीं, शराब के अलावा हजारों किस्म का नशा है जो आज का बच्चा कर रहा है, जो आज का मासूम कर रहा है। जवान पी रहे थे, उसका गम कम था। जवान शराब को अपने लबों से लगा रहे थे, उसका गम इतना नहीं था। अब गम तो ये है कि जो 10 साल का, 7 साल का, 8 साल का बच्चा है, वो भी अपने नाक से नशे को सूंघ रहा है। मैं कोई सुनी हुई बात नहीं कह रहा। जिस बस्ती में रहता हूं, उस बस्ती से बाहर की तरफ असर के बाद जाना होता है। तो टहलने के लिए हम एक दिन जा रहे थे, मैंने देखा कि वहां छोटा सा एक बंबा बहता है। वहां 10-10 साल के, 12-12 साल के 10-12 बच्चे आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। 2-3 रुमाल थे उनके पास, वो एक दूसरे से खींचता, एक दूसरे से छीनता और वो सूंघते थे। एक 7 साल का बच्चा, 10-12 साल का बच्चा चलो किसी के साथ बिगड़ गया होगा, उसे मालूम हो गया होगा कि इसमें क्या नशे की चीज है, क्या जायके की चीज है। 7 साल के बच्चे को क्या मालूम, जिसके जिस्म पर सिर्फ नेकर था, बाकी कपड़े भी नहीं थे, वो भी उन बच्चों से के पीछे दौड़ता है, भागता है और भागकर उस रुमाल को सूंघता है। मुसलमानों, कहां हमारी नस्ल आ रही है, कहां जा रहे हैं हम? क्या होगा इस नस्ल का? जो नौजवान आज शराब पी रहा है, वो बचपन में शराब नहीं पीता था, उसका बाप शराबी नहीं था, उसके खानदान में तो कोई दूर तक शराबी नहीं गुजरा है, लेकिन उसने सोसाइटी से गलत सोहबत इख्तियार की, गलत लोगों में बैठा तो ये गलत आदत पड़ गई। लेकिन जो नस्ल तैयार हो रही है, जिसके हाथों में आज हमारा मुल्क आने वाला है, हमारी नस्ल जो आगे चलकर हमारी नस्लों का जो दारो मदार होगा और हमें जो याद किया जाएगा, वो नस्ल जब इस तरह की तैयार होगी तो लोग हमें क्या याद करेंगे? ये हमारी कब्र पर सूरह फातिहा पढ़ने आएंगे या पेशाब करने आएंगे? मुसलमानों, फिक्र की जरूरत है, इस तरह के इदारे कायम करने की जरूरत है जैसा हमारे हजरत कारी साहब चला रहे हैं। बच्चों को तरबियत के साथ, ड्रेस के साथ, बेहतरीन निजाम के साथ, असल तरबियत है। दुनिया बड़े बड़े उलूम सिखा रही है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लोग हासिल कर रहे हैं, लेकिन जिसकी जितनी बड़ी डिग्री है, इतना बड़ा घोटाला कर रहा है। जो जितने बड़े ओहदे पर बैठा है, इतना ही बड़ा करप्ट है। डिग्रियां हासिल करने और तालीम में बहुत कमाल करने और बहुत सारी डिग्रियां हासिल करने का नाम इंसानियत नहीं। इंसानियत सिखाइए, तरबियत बच्चों की कीजिए। और तरबियत कहां होगी? इन्हीं मकातिब में होगी, इन्हीं मदरसों में होगी, इन्हीं मसाजिद की चटाइयों पर बैठकर होगी। जब इन मदारिस से कट जाएगी उम्मत, तो फिर वो शराबी, जुहारी और कबाबी ही बनेगी। एक सहाबी हैं, उन सहाबी से किसी ने पूछा कि आप बताइए तो सही, आपकी तौबा का क्या मामला बना? आपने इतनी सच्ची पक्की तौबा आखिर कर कैसे ली? आप तो बड़े शराबी थे, हर वक्त शराब के नशे में रहते थे, हर वक्त आप शराब पीते रहते थे। आप में नौजवानों को दूर तक मत पहुंचाइए उन लोगों तक जो कहते हैं कि हमारी आदत नहीं छुड़ रही, हमसे ये खबीस आदत दूर नहीं होती। उनको बताइए इस वाक़ये को। वो सहाबी कहते हैं कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं रात को सोया हुआ था, मैंने ख्वाब देखा कि मेरी 2 साल की बच्ची, जिसका कुछ टाइम पहले इंतकाल हुआ था, जब वो हयात थी तो मैं शराब पीता, जब शराब पीता तो मेरे प्याले को वो बखेर देती थी, मेरी बोतल को वो फेंक देती थी और मुझसे 2 साल की ही तुतलाती हुई जबान में कहती थी, अब्बा ये क्या पीते हो तुम? तुम्हें होश नहीं रहता, तुम मस्त हो जाते हो, तुम बदहोश हो जाते हो, तुम्हें ना अपने का पता होता है ना गैर का पता होता है, ये क्या खराब तुम्हारी आदत है, इसको छोड़ दो, मुझे तुम जब अच्छे नहीं लगते जब तुम इस आदत को अपनाते हो और इस चीज को पीते हो। मुसलमानों, बताओ, एक आम सा आदमी भी जो सिर्फ खालिस सुपारी खाता हो या पान खाता हो या बीड़ी पीता हो, जब अपने मासूम बच्चे के सामने वो कभी बैठकर बीड़ी पीता होगा, कौन सा नौजवान, कौन सा हमारा बुजुर्ग ऐसा है कि उसके छोटे मासूम बच्चे ने उसे बीड़ी पीने से मना नहीं किया होगा? जिस मासूम के सामने भी आप पिएंगे वो यही कहेगा, अब्बा आप क्या करते हैं, ये बीड़ी पीते हैं, आपके जिस्म से बदबू आती है। जब आप दरवाजे में दाखिल होते हैं तो जब ही मालूम हो जाता है कि बदबू के किस तरह की है, कि हमारे अब्बा की है, बीड़ी पीकर आते हैं, बीड़ी की बदबू आती है। तो वो ये इसी तरह की, जैसे आज हमारे बच्चे नसीहत करते हैं, इसी तरह की नसीहत अपने वालिद को करती। खैर 2 साल ही की उम्र में उस बच्ची का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद ये ख्वाब देखते हैं, और ख्वाब क्या देखते हैं कि वो 15 शाबान की रात है।
15 शाबान की रात में इन्होंने देखा कि हशर और नशर कायम हो चुका है, अल्लाह का मैदान सज चुका है, लोगों का हिसाब व किताब चल रहा है और मुझे हिसाब के लिए बुलाया जाता है। जब मैं हिसाब के लिए आगे बढ़ता हूं तो मेरे पीछे एक बहुत बड़ा सांप अजदहा लग जाता है, मैं उससे डर कर भागता हूं। मैं जितनी तेज भागता हूं वो मेरे पीछे उतनी मुझसे ज्यादा तेज भागता है। मैं भागता हुआ पहुंचा तो मुझे पास में एक बुजुर्ग दिखाई दिए। मैंने कहा कि बुजुर्ग मुझे इस सांप से बचाइए, मुझे बड़ा डर लग रहा है इससे, ये मुझे मार देगा, ये मुझे बर्बाद कर देगा, ये मुझे खा जाएगा, ये मुझे डस लेगा। उन बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुझे बचा तो लेता लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुझे बचा सकूं। वो बुजुर्ग के पास से गुजरे, मालूम हुआ कि ये मेरी मदद नहीं कर सकते, तो वो फिर आगे की तरफ दौड़े। दौड़ते हुए वो यहां तक के जहन्नम के किनारे तक पहुंच गए। जब जहन्नम की हुदूद तक पहुंचे तो पीछे से आवाज आई, कहां जा रहे हो, कहां दौड़ रहे हो, वापस आइए। वापस मुड़कर देखा तो फिर वही सांप पीछे से आ रहा है और डसने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये फिर बुजुर्ग के पास भागकर पहुंचते हैं, कहते हैं कि मुझे इस सांप से बचाइए, ये मुझे मार देगा, आपको दिख नहीं रहा, आप मेरी मदद क्यों नहीं करते। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं बिल्कुल लाचार हूं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता वो सामने पहाड़ नजर आ रहा है, जाओ, हो सकता है कि तुम्हारी कोई अमानत उस पहाड़ में रखी हो और उस अमानत के बदले तुम इस सांप से बच जाओ। ये दौड़ते हुए उस पहाड़ के पास पहुंचते हैं। इनके पहुंचते ही फरिश्ता आवाज देता है कि खोल दीजिए किवाड़, खोल दीजिए इस डोर और दरवाजे को, हो सकता है कि इनकी अमानत इस पहाड़ के अंदर रखी हो। जैसे ही ये सहाबी उस पहाड़ के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि इनकी बेटी दौड़कर इनकी तरफ भाग कर आ रही है। बेटी भाग कर आती है और दाहिने हाथ से हजरत एक उन सहाबी को पकड़ती है, बाएं हाथ से उस सांप को इस तरह डांटती और डपटती है कि एक पल में ही वो सांप आंखों से ओझल हो जाता है और भाग जाता है। ये अपनी बच्ची को देखते हैं, खुश होते हैं, पूछते हैं बेटी तेरा क्या बना, क्या मामला हुआ, अब्बा तुम किस हालत में हो, तुम कैसे हाँफते कांपते मेरे पास पहुंचे हो। बेटी ये कौन था जो मुझे इतना सता रहा था, मुझे मारने के लिए डसने के लिए बिल्कुल तैयार था, तुम ना पहुंचती तो मुझे खत्म कर दिया होता। तो उस बेटी ने कहा अब्बा ये आपके बदआमालियां हैं, ये आपके गुनाह थे जो आपके पीछे भाग रहे थे आपको तबाह व बर्बाद करने के लिए। मुसलमानों, हमारे गुनाह ही तो हमें जहन्नम में लेकर जाएंगे, हमारे गुनाह ही तो हमारे ऊपर दुनिया में अजाब बनकर मुसल्लत हो रहे हैं, हमारे गुनाह ही तो हमारे ऊपर गैरों की हुकूमत बनकर मुसल्लत हो रहे हैं, हमारे गुनाह ही तो हमारे ऊपर गैरों से जुल्म करा रहे हैं। ये गुनाह ही हैं जो आज हमें रुसवा किए हुए हैं, जो आज हमें 400 बदनाम किए हुए हैं। उस बच्ची ने कहा कि आपकी बदकारियां थी, आपके गुनाह थे जो आपके पीछे दौड़ रहे थे। और कहा बेटी फिर वो नेक बुजुर्ग कौन थे जो मुझे बचाना तो चाहते थे लेकिन उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो मुझे बचा सकते। बेटी ने कहा अब्बा ये आपके नेक अमाल थे, ये आपके नेक अमाल थे जो आपको बचाना तो चाहते थे लेकिन इनमें इतनी ताकत नहीं थी कि आपको जहन्नम से बचा सकते, आपकी बदआमालियों पर छा जाते, उनको पिछाड़ देते, इनमें इतनी ताकत नहीं थी। इन्होंने ख्वाब ही के अंदर अपनी बच्ची से पूछा बेटी क्या तुम्हें कुरान करीम याद है, क्या तुम कुरान करीम पढ़ती हो, क्या तुम कुरान करीम पढ़ना जानती हो। बेटी ने कहा हाँ अब्बा मुझे कुरान करीम आता है, मैं कुरान करीम पढ़ती हूँ। फिर बेटी ने कहा अब्बा क्या अभी वक्त नहीं आया कि नेक लोग अपने गुनाहों से तौबा कर लें, क्या मोमिनीन अब भी शराब पीते रहेंगे, क्या मोमिनीन अब भी बदकारी करते रहेंगे, क्या मोमिनीन अब भी अपने गुनाहों पर मुसिर रहेंगे, क्या अपनी गुनाहों वाली जिंदगी का वक्त नहीं आ गया कि मुसलमान अपनी गुनाहों वाली जिंदगी को छोड़ दें। इतना डांटा उस बच्ची ने, इन सख्त अल्फाज के अंदर वो डांट रही है और इनके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। आंख खुली तो वो 15 शाबान की रात थी। इन्हें इतना खौफ और डर हुआ, उसी दिन सच्ची तौबा कर ली कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। बच्ची ख्वाब में नजर आई, जो दुनिया में बातें कर रही थी वही आखिरत में जाकर उसने बताई। तो वो सहाबी, सच्चे पक्के सहाबी तो खैर नबी का चेहरा देखते ही सच्चा पक्का मुसलमान बन जाता है, लेकिन शुरू इस्लाम का जमाना और इतनी सच्ची पक्की तौबा की कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। शराब अभी पूरी तरह से
हराम भी नहीं हुई थी, स्टेप बाय स्टेप हराम की ये आयतें उतर रही थी, लेकिन उसके बावजूद कहा कि मैंने जब तौबा कर ली उसके बाद कभी शराब को मुंह तक नहीं लगाया। मुसलमानों, फिर आज हम क्यों इसे अपने अजीज बनाए हुए हैं? हमारा सबसे महबूब अमल और सबसे महबूब ग़िज़ा आज शराब बन गई है। मुसलमानों, क्यों आज हम अपनी जिंदगी को तबाह व बर्बाद कर देना चाहते हैं? क्या हमें जवानी अपनी अच्छी नहीं लगती? क्या खूबसूरत चेहरे पर हमें प्यार नहीं आता? कौन है वो जो अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं? आपको शीशा दिखाई नहीं देता? कभी शीशे के सामने खड़े होकर देखिए, अल्लाह इतना खूबसूरत चेहरा आपने मुझे बनाया है, इतनी खूबसूरत जवानी आपने मुझे दी है। अल्लाह की इन नेमतों को मैं अगर दुनिया में खरीदना चाहूं तो सारी दुनिया की दौलतें देकर भी आए एक इंसान को दुनिया नहीं बना सकती। एक आंख किसी की खराब हो जाए, सारी दुनिया की दौलत को वो दे दे, लेकिन वो आंख बदले में नहीं ले सकता, यहां तक कि कोई उसको हदिया कर दे। जिस्म के दूसरे आज़ा, कोई एक आज़ा खराब हो गया, अब क्या होता है? डॉक्टरों ने कह दिया जाइए घर पर खिदमत कर लीजिए, इनका कोई इलाज नहीं। उससे पहले क्या था? दंदनाता फिर रहा था, सारी दुनिया को अपने ऊपर हावी किए हुए था, अपने आप को दुनिया का मालिक समझता था। एक बीमारी आई, फेफड़ा खत्म, लीवर खत्म, दूसरे जिस्म के आज़ा खत्म, दिल पूरी तरह से मुतासिर, और अब 10 दिन का 8 दिन का मेहमान है, जाइए खिदमत कीजिए। अब हम कुछ नहीं कर सकते। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल रखने वाले भी कह देते हैं कि अब हमारी कोई गारंटी नहीं, जाइए और इसकी खिदमत कर लीजिए। मुसलमानों, इस जवानी की हमें कदर करनी है। अल्लाह ने ये जवानी दी है, अल्लाह इस जवानी का बदला, इस जवानी के बारे में सबसे पहले सवाल करेगा कि मैंने जवानी दी थी, मैंने खूबसूरत जवानी ताकतवर इंसान बनाया था, तूने क्यों उसको तबाह किया? क्यों तूने तबाह किया? अब लहू लईब में पढ़कर। तो हमें अपनी सच्ची पक्की तौबा करनी है, तौबा पर इस्तिकामत भी करनी है, तौबा पर कायम रहना है। जैसा कि उन सहाबी का आपने सुना कि तौबा की, उसके बाद कभी गुनाह की तरफ पलट कर नहीं देखा। मुसलमानों, सच्ची पक्की तौबा कर लीजिए। आज के बाद हम शराब को मुंह तक नहीं लगाएंगे। जो पी रहे हैं सच्ची पक्की तौबा करें। और जो मुआशरे में लोग अभी इस तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे, मैं बुजुर्गों से, अपनों से दरखास्त करता हूं, आप कमेटी बनाइए, एक टीम बनाइए, इनको घेर घेर कर आप रखिए और इन पर पूरी पाबंदी कीजिए, शिकंजा कस दीजिए कि कोई पीने ना पाए, कोई लहू लाइब में पड़ने ना पाए। आप सख्ती करेंगे तो कल को ये मुआशरा बच पाएगा, वरना मुआशरे को ये लोग तबाह व बर्बाद कर देंगे। अभी चंद लोग हैं, आने वाले 10-20 सालों में हजारों की तादाद में और 10-20% पहुंचेंगे, फिर इनका गलबा हो जाएगा। जब शर पसंदों का गलबा आ जाता है तो नेक लोग कुछ नहीं करते। अब भी कर लेने का वक्त है, क्योंकि हर वक्त मोमिन के ऊपर ये चीज लाजिम है, ये जरूरी है कि वो दावत देता रहे। ताकत के जोर पर अगर रोक सकता है तो रोके, और अगर नहीं रोक सकता है तो अपने घर में बैठने की उसको गुंजाइश नहीं, वो कहता रहे, सुनाता रहे, लोगों को बताता रहे। अगर नहीं बताएगा तो अल्लाह के अजाब में, अल्लाह के वबाल में वो भी गिरफ्तार होगा। मुसलमानों, हमें कहते रहना है, हमें सुनाते रहना है, हमें लोगों को तंबीह करते रहना है कि लोगों बच जाओ, लोगों बच जाओ इस चीज से, वरना ये तुम्हें तबाह व बर्बाद कर देगी, वरना ये तुम्हारी जवानियों को खत्म कर देगी। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये मुबारक रात है, इसमें अल्लाह तबारक ताला ने बहुत सी खुसूसियात रखी हैं, अपनी रहमतों के दरिया बहाए हैं, लेकिन शराब पीने वाले को अल्लाह तबारक ताला पसंद नहीं फरमाते, क्योंकि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। ये फरमाकर हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कि पुरानी उम्मतों में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उन वो बुजुर्ग अल्लाह के बड़े जबरदस्त महबूब थे, अल्लाह वाले थे। वो जिस बस्ती के अंदर, जिस शहर के अंदर रहते थे, वहां पर एक फाहिशा औरत थी। वो फाहिशा का हजरत पर दिल आ गया कि अल्लाह वाले खानकाह में बैठकर जिक्रुल्लाह करते हैं, जिक्र की ज़रबे लगाते हैं, बड़ा नूरानी चेहरा है, बड़ी जबरदस्त इनकी सेहत है, बड़ी अच्छी इनकी जवानी है, मुझे इनसे नफ्सानी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहिए, अपने दिल की तमन्ना को पूरा करना चाहिए। तो उस
औरत ने, उस फाहिशा और बदकार औरत ने एक लौंडी के जरिए से उन बुजुर्ग को बुलवाया कि बुलाइए, हमें फला मसला पूछना है, हमें फला फैसला कराना है, हमें फलाना काम है, आइए और हमें हमारे इस मसले को हल कीजिए। वो बुजुर्ग आए उस फाहिशा के घर। उस फाहिशा के घर जब पहुंचे तो उसने अपने सारे दरवाजे बंद करा दिए और कहा कि अगर आप मेरे पास नहीं रुकेंगे, मेरे पास नहीं बैठेंगे तो मैं शोर मचा दूंगी। पूरा बाजार भरा हुआ है, बाहर बाजार में पूरे लोग हैं, मैं कहूंगी कि ये तुम्हारा बुजुर्ग जिसको तुम अल्लाह वाला कहते हो, जिसको तुम नूरानी चेहरे का बताते हो, ये मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा है, ये मेरे साथ बदकारी करने की कोशिश कर रहा है, मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम मेरे बात को नहीं मानोगे तो मैं इस तरह शोर मचा दूंगी। मेरे आपसे दो चीजें हैं, मेरी आपसे दो शर्तें हैं। एक ये है कि ये शराब रखी हुई है, इसमें से एक प्याला पी लीजिए। दूसरी शर्त ये है, अगर आप शराब नहीं पी सकते तो ये बच्चा 10 साल का एक मासूम खड़ा है, इसको कत्ल कर दीजिए। इन दोनों कामों में से आपको एक काम करना पड़ेगा, वरना आप यहां से बाहर नहीं जा सकते। बाहर जाएंगे तो आपकी इज्जत खराब होगी, आप इस शक्ल में जाएंगे। बुजुर्ग ने सोचा कि बच्चे का कत्ल करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, कत्ल तो वैसे ही बड़ा गुनाह है, फिर ऊपर से ये बच्चा मासूम है, इसको कत्ल करूंगा तो बहुत बड़े गुनाह में मैं पड़ जाऊंगा। उन्होंने कहा कि बच्चे को मैं कत्ल नहीं करता, तू मुझे एक शराब का प्याला दे, शराब पी लूंगा, जाकर तय कर दूंगा, तौबा कर लूंगा, नहा लूंगा, गुनाह खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। बच्चे को कत्ल करूंगा, कयामत तक मैं कातिल कहलाऊंगा, और कातिल का फैसला यह है शरीयत के अंदर कि वो हमेशा हमें जहन्नम में रहेगा। तो मैं बच्चे का कत्ल नहीं करता, तू मुझे एक प्याला शराब का दे, मैं एक प्याला शराब पीकर अपनी जान छुड़ा लूंगा। बुजुर्ग ने एक शराब का प्याला लिया, एक प्याला पिया, फिर कहा कि दूसरा दीजिए। जब एक प्याला पी लिया तो अब तो होश खराब हो गए, अकल ठिकाने नहीं रही, एक के बाद एक हो गया, दूसरा पिलाइए, तीसरा पिलाइए, यहां तक कि जितना जग और लोटा वो रखा हुआ था सारे को पी गए। अब आप शराब को वो हल्का गुनाह समझ रहे थे, शराब को वो छोटा गुनाह समझ रहे थे। शराब की खबासत समझिए, शराब को तमाम गुनाहों की जो जड़ कहा गया है वो उस चीज को समझिए। उन्होंने शराब पी, अब शराब के बाद उसने उस औरत के साथ बदकारी की। शराब पीने का वबाल उनके ऊपर यह पड़ा कि उस औरत के साथ बदकारी की। उस औरत के साथ बदकारी करने के बाद उस बच्चे को भी कत्ल कर दिया। मुसलमानों, ये शराब का वबाल है, ये शराब का अजाब है। जब आदमी शराब पीता है, ना उसे बहन की तमीज है, ना माँ बाप की तमीज है, ना मुआशरे की तमीज है, ना मुआशरे की कोई उसको ये ख्याल है कि मैं लोग क्या कहेंगे, लोग किस तरह से मुझे पुकारेंगे, किस तरह से मुझे याद करेंगे। हमें तमाम खबासतों से बचकर रहना है और इस रात में सच्ची पक्की तौबा करनी है, शिर्क से तौबा करनी है, वालिदैन की नाफरमानी से तौबा करनी है और सिला रहमी का मामला करना है। आप किसी से आपकी बात खराब हो गई, उससे दुनिया में के अंदर ही माफी मांग लीजिए, अभी वक्त है। आप कहिए, अगर आप उसकी चीज को, उसके सामान को लौटा सकते हैं तो लौटाइए, वरना हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए, अल्लाह के वास्ते मुझे दुनिया में माफ कर दे। आखिरत में सारी दुनिया की दौलत, वहां दौलत होगी नहीं, लेकिन मिसाल दी जाती है कि अगर सारी दुनिया की दौलत भी लुटा दोगे तो एक नेकी हासिल नहीं कर पाओगे। तो वहां जब एक नेकी नहीं मिल पाएगी तो ये दुनिया है, ये अमल का रास्ता है, ये अमल का तरीका है, ये अमल की जगह है। यही हुकूकुल इबाद को हल कर लीजिए, अपने मसले को साफ कर लीजिए, आखिरत के ऊपर मत छोड़िए। मुसलमानों, एक से एक बड़ी बीमारी, बड़े से बड़े वबाएं और अजाब आजकल आ रहे हैं, आजमाइशें आ रही हैं। कब कौन सी बीमारी, कब किसका वक्त आ जाए और हम इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएं। कितने लोग थे जो आज हमारे बीच नहीं हैं, पिछली रात में वो हमारे साथ बैठे हुए थे। कितने लोग हैं जो आइंदा शब बारात पर नहीं होंगे और अब हमारे साथ बैठे हुए हैं। मुसलमानों, इसीलिए सच्ची पक्की तौबा करने की जरूरत है। अल्लाह के हुकूक को भी अदा कीजिए, बंदों के हुकूक को भी अदा कीजिए। बहुत लंबी लाइन लगी होगी एक आदमी के पीछे, इसने मुझे गाली दी थी, इसने मुझे थप्पड़ मारा था, इसने मेरा माल को नाहक खाया था, इसने मुझे सताया था। बताइए क्या क्या देगा वो,
किस किस को जवाब देता फिरेगा। क्या करेंगे वो लोग? इसकी नेकियों को लेते जाएंगे। गाली वाला नेकी ले गया, थप्पड़ मारने वाला नेकी ले गया, बुराई करने वाला नेकी ले गया। आखिर में क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचेगा और लोग बच गए तो अब क्या करेंगे? वो अपने गुनाह उसके ऊपर डालते चले जाएंगे। तो मसला दुनिया में हल कर लीजिए हुकूकुल इबाद का। अल्लाह ने इस निजाम को दुनिया के अंदर रखा है, यही हल कर लेंगे, यही ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर आखिरत में पहुंचा तो वहां का मामला बड़ा सख्त है। मुसलमानों, ये बच्चे आपके बच्चे हैं, ये आपका मुआशरा है, ये आपका हल्का है, ये आपकी सोसाइटी है। एक आदमी कभी मुआशरे की इस्लाह नहीं करता, एक आदमी से कभी मुआशरा साले नहीं होता। साले मुआशरा अगर हमें बनाना है तो हम सबको मिलकर बनाना पड़ेगा। सिर्फ एक आदमी कोशिश करता रहे साले मुआशरा बन जाए, साले मुआशरा नहीं बन सकता। साले मुआशरा जब भी बनेगा जब तमाम के तमाम लोग कोशिश करेंगे। और कोशिश कैसी होगी? अपने बच्चों से कोशिश कीजिए, खुद अपनी जात से कोशिश कीजिए। मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे अपनी नस्ल की फिक्र करनी है, फिर मुझे पहले वालों पर जाना है, फिर मुझे पड़ोस में जाना है, फिर मुझे बराबर की बस्ती में जाना है, फिर मुझे दूसरी बस्ती की फिक्र करनी है। पहले अपने आप की, फिर अपने अहलो अयाल की। ये नहीं कि बच्चे को पहले ही दिन से मौलवी बनाना शुरू कर दिया, नहीं, पहले अपनी इस्लाह कीजिए। बच्चा मौलवी बाद में बनेगा। आज मस्जिद में बच्चे आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, यहाँ तो माशाअल्लाह आपकी मस्जिद में प्रोग्राम की बरकत भी है और मदरसे की बरकत भी है कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ नमाज के लिए मौजूद थे। वरना जाकर देखिए मसाजिद के अंदर 2-4 बच्चे कभी आ गए, और आ गए तो पीछे जो सफ में लोग होते हैं, किसी ने उसको डांट दिया, किसी ने उसको डांटा कि कहां शोर कर रहे हो, क्या बदतमीजी फैला रखी है, कहां से आ गए, भगाओ इनको। अरे भाई, आपका जो दिल है, आपका जो ख्याल है वो बच्चों ही की तरफ क्यों जा रहा है? आप तो नियत बांधने के बाद परवरदिगार के सामने पेश हो गए, अल्लाह के हुजूर आप पेश हो गए। यहाँ अपने जिले का ही डीएम बुला ले और बड़ा अधिकारी बुला ले, हमारे ख्याल में, हमारे जहन में घर की कोई चीज नहीं आ सकती, उसके सामने हाजिर और उसकी चीजों का और उसकी बातों का हम जवाब दे रहे हैं। अहकमुल हाकिमीन के सामने हम खड़े हुए हैं और हमारे कानों में ये आवाज आ रही है कि बच्चे बात कर रहे हैं और बच्चे शोर मचा रहे हैं। सलाम फिरने के बाद हर एक की कोशिश ये होती है कि मैं डांटूंगा, हर एक की कोशिश ये होती है कि मैं गाली दूंगा। ये एक सादा सा जुमला में बोल रहा हूं कि मैं सख्त लहजे में डांटूंगा, कि हर एक की कोशिश ये होती है, यानी कि सभी का दिल बच्चों में पड़ा हुआ है। मुसलमानों, ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा फ्यूचर है। अगर हमें आज अपने बच्चों को हम देख रहे हैं कि वो मस्जिद के अंदर आ रहे हैं तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारे बाद हमारी नस्ल जिंदा है, ये मस्जिद को याद रखेगी, ये मदरसे को याद रखेगी। गोया कि हमारे बाद हमारी कब्रों पर खड़े होकर फातिहा पढ़ने वाले जिंदा रहेंगे। ये नहीं कि हमारी कब्रों पर कुत्ते पेशाब कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। जब तक ये बच्चे मसाजिद में आते रहेंगे, इन्हें याद रहेगा हमारे बुजुर्ग नमाज पढ़ा करते थे, हमारे बुजुर्ग मस्जिद में आते थे, हमारे बुजुर्ग उलमा से मुलाकात रखते थे। मुसलमानों, कयामत के करीब क्या होगा? जब कोई भी कलमे को नहीं जानता होगा, जब कयामत बिल्कुल आने ही वाली होगी, हर तरफ जुल्म, हर तरफ फसाद और हर तरफ कुफ्र ही कुफ्र होगा, तो उस वक्त लोग बड़े बूढ़े जो बहुत उम्र का हो गया होगा वो ये कहेगा, अगर कहीं वो ये सुन लेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे को अगर उसने कहीं सुन लिया तो वो ये कहेगा कि हमारे दादा परदादा इस कलमे को पढ़ा करते थे, हमारे दादा परदादा इस कलमे को पढ़ा करते थे और आज के वक्त में वो सुनने को नहीं मिल रहा। तो मुसलमानों, हमें खुश होना चाहिए कि हमारे बच्चे मस्जिद में आ रहे हैं, हमारे बच्चे मदारिस में आ रहे हैं, हमारे बच्चे मकतब में पढ़ रहे हैं। हमें इनके आने से ये खुशी है कि हमारा आने वाला जो मुस्तकबिल है, हमारा आने वाला जो वक्त है, उसमें हमारे बच्चे दीनदार होंगे, कलमे को पढ़ने वाले होंगे। क़यामत के करीब जैसा माहौल अभी नहीं होने वाला। हमारे बाद पढ़ने, हमारे जाने के बाद ये हमें कुरान करीम का सवाब बख्शने वाले होंगे। लेकिन मुसलमानों, जब दुनिया से इंसान चला जाता है, मर जाता है, तो उसके जो अमाल उसने अब तक किए थे सिर्फ वही काम आते हैं, बाकी उसके कोई अमल काम नहीं आता, कोई बात उसके काम नहीं आती। जो कुछ वो कर गया है, अब बस उसका रजिस्टर बंद, और जितनी चीजें उसने की हैं, जितनी इबादतें उसने की हैं,
صرف اس کا ثواب اس کو ملے گا. اگر وہ گناہ کے کام کر کر گیا ہے تو ان کا عذاب بھی اس کو ملتا رہے گا. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے. ایک نیک صالح اولاد, ایک صدقہ جاریہ, اور ایک ایسا صدقہ کہ قرآن کریم مسجد کے اندر رکھا دیے, لکھنے پڑھنے کی کتابیں رکھا دی, یا کتاب لکھ دی, دین کا کام چل رہا ہے, دین کے کام میں مدد کر دی. یہ 3 صدقے ہیں جن کا مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے. قاری صاحب وقت ہو رہا ہے اور اچھا چلیے ٹھیک, بس تھوڑا سا بیان کر دوں عنوان. تو مرنے کے بعد جو چیز کام آتی ہے وہ نیک صالح اولاد, جو ہم نے اپنی اولاد کو پڑھایا ہے, جو ہم نے اپنی اولاد کو دین سکھایا ہے, وہ کام آتا ہے. جو بچے یہاں پڑھ کر سیکھ رہے ہیں یہی کام آخرت میں آنے والا ہے. ایک نوجوان, ایک بزرگ گزرے ہیں, حضرت عبداللہ بن مخطب بن شقیر رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بزرگ کے واقعے سے پہلے ایک واقعہ میں اور سناؤں چھوٹا سا. بنی اسرائیل کے ایک بزرگ قبرستان سے جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ قبر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. وہ قبر کے پاس پہنچے, دیکھا کہ قبر میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, بہترین تکیے لگے ہوئے ہیں اور تخت پر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے. یہ بزرگ پاس پہنچے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں, اس طرح تلاوت کیوں فرما رہے ہیں, آپ کو یہ اعجاز کیسے حاصل ہو گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے میں نے دعا کی تھی کہ مرنے کے بعد مجھے قرآن کریم پڑھنے کی اجازت دی جائے, تو میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں. تو ان بزرگ سے اس شخص نے کہا جو قبر کے اندر قرآن کریم پڑھ رہا تھا کہ میں قرآن پڑھ تو رہا ہوں لیکن اس کا ثواب مجھے نہیں ملنے والا. ثواب تو انہی چیزوں کا ملتا ہے جو مرنے سے پہلے کرتے ہیں, مرنے کے بعد کوئی کچھ بھی کرے اس کا ثواب نہیں ملتا. ہاں, آپ مجھے 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ دیجئے, اس کا ثواب مجھے مل جائے گا. مجھے بھی اس کی ضرورت ہے. مسلمانوں غور کیجئے, جو اس قدر تلاوت کر رہا ہے, قرآن کریم پڑھ رہا ہے, یقیناً اللہ کے یہاں اس کا کچھ مقام ہوگا, یقیناً اللہ کے یہاں اس کے فضائل ہوں گے, یقیناً اللہ کے یہاں اس نے بڑا مرتبہ پایا ہوگا. لیکن وہ اس حالت میں بھی کہہ رہا ہے کہ آپ میرے لیے 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ دیجئے, اس کا ثواب مجھے پہنچے گا. جب ہمارے عزیز, ہمارے والدین, ہمارے بڑے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کو امید ہوتی ہے کہ میری نسلوں میں سے کوئی میرے لیے ایصال ثواب کرے گا, میرے لیے کوئی قرآن کریم پڑھ کر بخشے گا. روایت کے اندر آتا ہے کہ زندگی میں صرف 1 مرتبہ ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور دعا سلام کیا, دعا سلام کے بعد اس نے سلام کا جواب مسکرا کر دیا. تو مرنے والے کا جواب وہ مسکرا کر دے رہا ہے. تو مرنے والا یہ تصور کرتا ہے کہ جب میں فلاں جگہ جا رہا تھا تو اس آدمی سے میری ملاقات ہوئی تھی, میں نے اس کو سلام کیا اور وہ مسکرا کر مجھے جواب دے رہا تھا, تو گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. کاش کہ میرے نام سے وہی قرآن کریم پڑھ کر بخش دے. جس سے صرف زندگی میں 1 ملاقات ہو رہی ہے, اس سے جب اس کو یہ امید ہے کہ میرے نام سے وہی قرآن کریم پڑھ کر بخش دے, تو مسلمانوں اپنی اولاد سے کتنی بات کو امید ہوتی ہوگی, اپنے عزیزوں سے, خاندان والوں سے, رشتہ داروں سے, گھر والوں سے, جانے والے کو کتنی امید ہوتی ہوگی کہ میرے نام سے وہ قرآن کریم پڑھ کر بخش دیں. مسلمانوں اپنی نسل کو پڑھاؤ, یہی کام آئے گی, یہی کام آئے گا آخرت کے اندر بھی. دنیا کی ڈگری حاصل کراؤ لیکن انہیں انسان بناؤ, انہیں دیندار بناؤ. یہ دیندار بنیں گے تو آپ کی آخرت سنورے گی, اگر دیندار نہیں بنے تو ہماری دنیا بھی تباہ و برباد ہے اور آخرت بھی تباہ و برباد ہے. ایک واقعہ جو میں بھی سنانا چاہتا تھا وہ سن لیجئے. دیندار اولاد کا, دیندار نسل کا کیا فائدہ ہوتا ہے, اپنے پیچھے دیندار بیٹا چھوڑنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے, یہ سن لیجئے. اس واقعے کو سننے کے بعد جن لوگوں کو نیند آ رہی ہے ان کی نیند ختم ہو جائے گی, جن لوگوں کے اوپر فرشتوں کا سایہ اتنا ہو گیا ہے کہ نیند کے آغوش میں کھو گئے. مسلمانوں سوچو تو صحیح, آج سے پہلے آپ کو شب برات میں قاری صاحب نے یاد کیا تھا, شب برات کے بعد آج آپ کو یاد کیا ہے, اور آج پہلا موقع ہے کہ آپ مسجد میں اتنی دیر بیٹھے ہیں. آپ رات دن اپنے کام کے اندر مشغول تھے. قاری صاحب یا دنیا کے کوئی لوگ یا دیندار لوگ آپ کو ڈسٹرب کرنے نہیں پہنچے کہ آپ اٹھ جائیے, رات کے 12 بجے ہیں, دین کی بات سنیے. آپ اٹھ جائیے, جمعے کا وقت ہے, سویرے آ کر مسجد میں بیٹھیے. بتائیے ایمانداری سے, کوئی آپ کو پریشان کرنے والا تھا, کوئی آپ کو بتانے والا تھا کہ سونے کا وقت نہیں ہے, جاگیے؟ تو جب اب آج پہلی بار آپ کو سال میں 1 مرتبہ یاد کیا جا رہا ہے, سال میں 1 مرتبہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے, آپ کے فائدے کی بات کی جا رہی ہے,
दुनिया के फायदे की भी और दुनिया से जाने के बाद आखिरत के फायदे की भी। तो मुसलमानों, फिर हमारी आंखों में नींद कैसी? ये गफलत नहीं तो क्या है? ये गफलत नहीं तो क्या है? मुसलमान अगर अपनी मौत को सिर्फ याद कर ले तो खुदा की कसम उसको नींद भी नहीं आ सकती। जिसके घर जिसका अजीज जाता है, जिसका अजीज भाई, रिश्तेदार या करीबी वालिदैन जाते हैं, उस दिन उसका हाल मालूम करना उसका मरने को जी करता है। अपना अजीज चला गया, बाप चला गया, भाई चला गया, उस घर में आलम देखिए कैसा तूफान होता है, कैसी कयामत उस घर में टूटती है। उन घर वालों से पूछो, उनका मन ये करता है। मैं अपना तजर्बा आपको बता रहा हूं कि जंगलों में निकल जाएं, जंगलों में जाकर चीख मारे, चीख मारने को जी करता है जब अपना अजीज चला जाता है, रोने को जी करता है जब अपना कोई अजीज चला जाता है। पागल और दीवानों की तरह हरकतें करने को इंसान का मन करता है कि जब कोई अपना चला जाता है। मुसलमानों, जब ये शरीयत का हमारे ऊपर एहसान है कि उसने इन सब चीजों के ऊपर पर्दा रखा है, उसने हमारे ऊपर कंडीशन रखी है कि आप इस तरह लहो लाइब में नहीं पढ़ सकते, इस तरह आप आहो भुका नहीं कर सकते, इस तरह रो नहीं सकते, इस तरह चीख नहीं मार सकते, इस तरह पहाड़ों में नहीं निकल सकते जिंदगी गुजारने के लिए। अगर ये तरीका होता, खुदा की कसम आधे लोग अपने घर में मौत के बाद बाहर निकल जाया करते। इतना गम और इतना कुड़ जाता है आदमी अंदर से। तो जब हमारा इंतकाल होगा, जब हमें अपने अजीज के जाने का इतना गम है, तो जब हमारा इंतकाल होगा तो फिर क्या आलम होगा? तो रोने वाले तो दूसरे ही होंगे। हमें क्या चीज काम आएगी वो बता रहा हूं, हमें क्या चीज फायदा देगी वो बताने जा रहा हूं। ये नेक औलाद काम आएगी, या जो हमने बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया है और अब रात दिन बड़ा चैन की नींद आती है, बड़ा चैन से और बड़ा फख्र से अपनी बैठक में बैठकर बताता है कि मैंने जो फला बिजनेस कायम किया था, अब मेरा बेटा उसको संभालने लगा है। यार जी, तो मस्त घर में रहता। तो ये जुमले जब हमें कहने चाहिए जब हमारी औलाद दीनदार भी हो। क्या दुनिया कमाने के लिए है, या सिर्फ हम दुनिया को लूटने के लिए हैं? दुनिया इकट्ठी करने के लिए हमें बनाया है, दुनिया के अलावा कोई काम नहीं। ये तो एक मैदान है जिसमें रेस लगी है, कौन आगे जाएगा। कोई बीच में से भी गिर जाएगा, उसको भी उठाकर ले जाया जाएगा। जब रेस लगती है तो कुछ लोग आगे पहुंचते हैं, कुछ लोग बीच में ही गिर जाते हैं, कुछ लोग शुरू में ही गिर जाते हैं। तो ये रेस का मैदान है, कोई आखिर तक पहुंचता है, कोई बीच में गिर जाता है, कोई शुरू में गिर जाता है। गिरना हर एक को है, गिरेगा हर एक। मौत सबको आनी है। मौत एक ऐसा कड़वा सच है जिसका जाम हर एक को पीना है। तो मौत के बाद क्या चीज काम आएगी, कौन सी औलाद हमें काम आएगी? बस ये वाकया सुन लीजिए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुखत्तब बिन शकीर रहमतुल्लाहि अलैह बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। उन्होंने एक बुजुर्ग का वाकया बयान किया कि एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा, ख्वाब के अंदर सारी कब्रिस्तान की कब्रें फटी और मुर्दे बाहर निकले। बाहर निकलकर वो चलने लगे। कोई पेड़ के नीचे की तरफ जा रहा है, कोई दीवार के सहारे की तरफ जा रहा है, कोई आगे की तरफ गया। और जब उन्होंने देखा कि वो चलकर आगे पहुंचे हैं तो वो जमीन से कोई चीज उठा रहे हैं। जमीन से जैसे हाथों में कोई चीज आदमी रिस्क गिर जाए, कोई सामान आदमी का गिर जाए, जब जमीन से इत्मीनान से बैठकर वो उठाता है बारीक चीज को। ये बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने देखा कि वो इस तरह की कोई चीज जमीन से उठा रहे हैं। मैं करीब पहुंचा तो मुझे कोई चीज नजर नहीं आई कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। वो सारे लोग अपने काम में मसरूफ थे, ऐसे मसरूफ थे कि उन्हें दूसरे की कोई परवाह नहीं, दूसरे की कोई खबर ही नहीं कि कौन हमारे पास है, सामने वाला कौन है, पीछे वाला कौन है, उन्हें कोई खबर नहीं। बस वो अपनी जमीन से कोई चीज उठाने पर लगे हुए हैं। इन बुजुर्ग की नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी जो टेक लगाए हुए थे पेड़ से, पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने देखा कि ये फारिग बैठे हैं, जमीन से ये कुछ नहीं उठा रहे। ये बुजुर्ग उनके पास पहुंचे और कहा कि आप जमीन से टेक लगाए बैठे हैं, आप पहले मुझे ये बताइए कि ये लोग जमीन से क्या चीज उठा रहे हैं। मुझे कुछ नजर नहीं आता, लेकिन ये अपनी झोलियों में भर रहे हैं, अपने हाथों में उठा रहे हैं और बड़ी फिक्र के साथ, जैसे कोई अजीज चीज खो जाती है, अजीज चीज जमीन से आदमी उठाता है, इस तरह से ये जमीन से वो चीज उठा रहे हैं। उन बुजुर्ग ने कहा कि जो उम्मत मुहम्मदिया में नेक लोग, मोमिन और मुसलमान दुआएं करते हैं, कुरान करीम पढ़ते हैं, सदका व खैरात करते हैं, उम्मत के उन लोगों के लिए जो जा चुके हैं, उम्मत के जो उन लोगों के लिए जो इंतकाल फरमा गए हैं,
तो ये उनकी दुआएं अल्लाह तबारक ताला किसी शक्ल में भेज देता है। तो ये उन दुआओं को जमीन से उठा रहे हैं और इन दुआओं को, इस कुरान करीम के पढ़ने को, इस इसाले सवाब को ये अपनी झोली में उठाते हैं और अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। अल्लाह, उम्मत के लोगों ने, मेरे अजीजों ने, मेरे रिश्तेदारों ने और आपकी उम्मत में, आपके हबीब की उम्मत में पैदा होने वाले लोगों ने मेरे लिए ये दुआएं भेजी हैं, ये सदका भेजा है, ये खैरात भेजा है। इसके बदले में आप मेरे ऊपर रहमो करम का मामला फरमाइए, आप मेरे ऊपर अजाब को कम कर दीजिए, आप मेरे मामले को हल कर दीजिए, आप मुझे इस जहन्नम वाली, इस अजाब वाली जिंदगी से छुटकारा दे दीजिए। इन बुजुर्ग ने कहा, अच्छा ये चीज उठा रहे हैं तो आपको दुआओं की जरूरत नहीं, आपको कुरान करीम की जरूरत नहीं, आपको सदका व खैरात की जरूरत नहीं, उम्मत मुहम्मदिया की दुआओं की आपको जरूरत नहीं, आप तो फारिग बैठे हुए हैं। उन बुजुर्ग ने कहा कि जरूरत तो मुझे भी है, लेकिन मुझे जितनी जरूरत पड़ती है, मेरा बेटा हाफिज कुरान है, वो रोजाना मेरे लिए एक कुरान करीम पढ़कर बख्श देता है और मेरे लिए वही कुरान करीम काफी हो जाता है। और कहा इन बुजुर्ग ने कि आपका बेटा कहाँ रहता है? कहा कि मेरा बेटा फला बाजार के अंदर है, उसकी मीठे की दुकान है, वो लोगों से मिलता जुलता भी है और ग्राहकों को हैंडल भी करता है, उन्हें सामान भी देता है, पैसे भी लेता है और बराबर कुरान करीम भी पढ़ता रहता है। सुबह को इन बुजुर्ग की आंख खुली, बाजार के अंदर गए, जाकर देखा दूर से कि हाँ फला जगह दुकान बताई कि जी हाँ वही है, मिठाई की दुकान है। एक नौजवान खूबसूरत खड़ा हुआ है, लोगों से बात कर रहा है, सामान उनको दे रहा है, पैसे ले रहा है, लेकिन उसके बराबर होठ चल रहे हैं, उसके बराबर होठ चल रहे हैं। लोगों से इन बुजुर्ग ने मालूम किया कि ये नौजवान जो सामने है ये कौन है, क्या माजरा है इसका क्या मामला है, मुझे बताइए। तो उन लोगों ने कहा कि इसका वालिद था जो इस दुकान पर बैठता था, ये मदरसे के अंदर रहता था, ये अपना कुरान पढ़ता था और अपनी तालीम में लगा हुआ था, इसके वालिद का इंतकाल हो गया तो इसके अपने वालिद की दुकान पर आकर अब ये नौजवान बैठ गया है और ये नौजवान अपने वालिद की दुकान को चलाता है, अपने तालीम को इसने बंद कर दिया है और ये लोगों से अब अपने मामलात आगे बढ़ा रहा है। इनकी लोगों की बात सुनकर अब ये आगे की तरफ बढ़े और पहुंचे उस नौजवान के सामने, देखा कि ये कुरान करीम भी पढ़ रहा है और लोगों को सामान भी दे रहा है। दुआ सलाम हुई, कहा कि नौजवान मैं बहुत देर से देख रहा हूं तुम होठ हिला रहे हो, आखिर माजरा क्या है, क्या कर रहे हो? नौजवान ने कहा मेरे वालिद थे, उनका इंतकाल हो गया, मैं उनके लिए रोजाना एक कुरान करीम पढ़ता हूं, मैं वही कुरान करीम पढ़ रहा हूं। इन बुजुर्ग ने कुछ नहीं बताया, क्या मामला, क्या ख्वाब में मैंने आपके वालिद को देखा, क्या मेरे साथ गुजरी। वो आकर अपने घर आ गए, अपने कामों में मशगूल हो गए, जिंदगी चलती रही, गुजारा होता रहा। कुछ दिन के बाद इन बुजुर्ग ने फिर ख्वाब देखा कि कब्रिस्तान का मैदान है, कब्रें फट रही हैं और उनसे मुर्दे बाहर आ रहे हैं और वो जमीन से कोई चीज उठा रहे हैं। ये बुजुर्ग पहुंचे करीब, देखा कि तमाम कब्र वाले लोग जमीन से कोई चीज उठा रहे हैं। अब इनकी निगाह तो एक ही तरफ पड़नी थी कि मैं फला बुजुर्ग से पहले मिला था, उनकी तरफ ये देखने लगे कि कोई से पेड़ के नीचे वो बैठे होंगे, कोई से पेड़ से उन्होंने टेक लगाई होगी। सारे पेड़ों की तरफ जब नजर घुमाई तो किसी पेड़ के नीचे वो बुजुर्ग नहीं थे। अब जो जमीन से लोग कुछ उठा रहे थे उनकी तरफ जब नजर ये करते हैं तो देखते हैं कि अब वो बुजुर्ग भी जमीन से कोई चीज उठा रहे हैं। तेजी से आगे बढ़ते हैं, उनके पास पहुंचते हैं, पूछते हैं कि बुजुर्ग क्या हुआ, आप तो कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि आप फारिग पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और आपको इन दुआओं की जरूरत नहीं थी, ऐसा क्या हादसा आपकी जिंदगी के अंदर आ गया, आपके साथ क्या मामला ऐसा घट गया कि आपको भी उम्मत मुहम्मदिया से आने वाली दुआओं की जरूरत है। इन बुजुर्ग ने फरमाया कि मेरा फला बेटा जो मेरे लिए रोजाना एक कुरान करीम पढ़कर बख्शता था, अब उसका इंतकाल हो गया है। अब मेरे बाद उस बेटे के पीछे कोई मेरे लिए कुरान करीम पढ़ने वाला, मेरे नाम से सदका करने वाला, मेरे नाम से इसाले सवाब करने वाला बाकी नहीं बचा है। अब उम्मत मुहम्मदिया की जो दुआएं आती हैं, मेरा भी उन्हीं के ऊपर गुजारा होता है, मेरा भी उन्हीं दुआओं पर सहारा है, मुझे भी उन दुआओं की जरूरत पड़ती है, मैं भी उन दुआओं को उठाता हूं और अल्लाह के हुजूर पेश कर देता हूं। मुसलमानों, हमें सहारा बनाकर जाना है, हमें बेसहारा छोड़कर नहीं जाना इस दुनिया को।
इस उम्मत को, अपनी नस्ल को हमें जाने के बाद सवाब पहुंचता रहे, हमारे नामे आमाल में नेकियां लिखी जाती रहें। इस तरह के काम कर कर हमें जाना है। ये काम जब कर सकते हैं जब हमें अब फिक्र हो जाएगी, हमें अपनी नस्ल को इस तरह से बनाकर जाना है। एक मर्तबा भी कुरान करीम का पढ़ेगा, वो देख कर पढ़ेगा, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ देगा, हमारा काम बन जाएगा। और वहां पहुंचकर आसरा होगा, वहां पहुंचकर तमन्नाएं होंगी, लेकिन यहां हमें पहले कुछ करना होगा। इंशाअल्लाह सब फिक्र करेंगे, इंशाअल्लाह हमें अपनी जिंदगी में ऐसे काम जरूर करके जाने हैं कि आखिरत में उनका सवाब हमें मिलता रहे। अल्लाह तबारक ताला हमारी नस्लों में, ये दुआ भी कर लीजिए, अल्लाह तबारक ताला हमारी नस्लों में जितने मुसलमान गुजरे हैं इस रात की बरकत से सबकी मग़फ़िरत फरमाए। और अल्लाह तबारक ताला हमारे बाद या हमारी नस्लों में जितने मुसलमान गुजरेंगे, हमारी भी साथ में हम सबकी, आने वाले लोगों की, अल्लाह तबारक ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह तबारक ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। जितनी बातें हुई अल्लाह तबारक ताला उन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इस अख्तर की ज़बान से कोई जुमला ऐसा निकल गया हो जो हमारे किसी अजीज को, नौजवान को, मेरे भाई को बुरा लगा हो। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस तरह की इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। जज़ाकल्लाह।